Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is data handling. Learning objectives. To understand the representation of data, tune up. First, data handling means gathering and recording the data, then presenting it in a meaningful way. Next, first step in data handling is collection of data. सबसे पहले हम data को collect करते हैं. Next, second step in data handling is interpretation of data. Let's start. Look at the chart showing different shapes. इस चार्ट में आपको सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स दिख रहे हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ईच ऑफ द शेप्स अकर्स. हर शेप, तो सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो हमारा सर्कल कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स. ऐसे ही ट्राइंगल 1 2 3 4 टाइम्स, ट्राइंगल्स हमारे 4 टाइम्स, एंड स्क्वायर इज 1 2 3 4 5. स्क्वायर हमारे 5 टाइम्स, एंड रेक्टेंगल इज 1, is only 1. Now second question, which shape occurs the most? Most means सबसे ज्यादा, and which the least, सबसे कम. सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? सर्कल्स. तो हमारे पास most क्या है? सर्कल्स 6 हैं, और least क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल. कितने हैं? 1. We find the answer by drawing and completing the table as shown. Name of shapes, tick mark, number of shapes. Now first is square, कितने हैं? 5, rectangle 1, circle 6, triangle 4. So the number of circle occurs the most, that is 6, and the number of rectangle occurs the least, that is 1. Now pictographs. A given information or data can be expressed in number of ways. We may express it in words, symbols, pictures, or through graphs, etc. When we use pictures or symbols to represent information or data, जब हम pictures का use करते हैं, symbols का use करते हैं, it is called pictograph. In pictograph, a specific number of objects are represented or shown by the same type of pictures or symbols. For example, a picture may represent 1 or 10 or any other number. Now, representation of data through words and pictograph. Ask your classmates about their favorite fruits. Now, fill in the blanks. Favorite fruits and number of children. तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं. आप अपनी क्लास के क्लासमेट से पूछ सकते हैं किसको कौन सा फ्रूट पसंद है, उसकी आप पिक्चर बनाएंगे, और जो फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, उसकी आप पिक्चर बनाएंगे और अपने क्लासमेट से पूछेंगे कितने बच्चों को एप्पल पसंद है. तो जितने बच्चों को 10 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? एप्पल की ऐसे पिक्चर बनाएंगे और उसके सामने क्या लिख देंगे? 10. यहाँ पे आप मैंगो की पिक्चर बनाएंगे, मैंगो कितने बच्चों को? 20 बच्चों को पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे 20. तो इस तरह से ये टेबल आप अपनी क्लासरूम में अपनी टीचर की हेल्प से फिल करेंगे. नाउ स्टडी द अबाउट टेबल. आप इस टेबल को स्टडी करेंगे and answer the following. Like A part, which fruit is liked the most? जितने भी फ्रूट्स आपने बनाए हैं उसमें जिसका सबसे ज़्यादा काउंट रहेगा वही फ्रूट क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है बच्चों के थ्रू. तो ये टेबल आप पहले बनाएंगे, राइट? डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. विच फ्रूट इज लाइक द मोस्ट, विच फ्रूट इज लाइक द लिस्ट. लिस्ट मतलब सबसे कम कौन सा फ्रूट पसंद किया गया, एंड विच इज योर फेवरेट फ्रूट. और आप बताएंगे आपका फेवरेट फ्रूट क्या है. क्या है आप लोगों का? मेरा तो मैंगो है, राइट? आप इसमें अपना फेवरेट फ्रूट लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज
A class had 28 children. The number of students present and absent are shown on each day in a particular day. Table of attendance of class 2. Day, students present, students absent. Monday 25 present, 3 absent. Tuesday 24 present, 4 absent. Wednesday 20 present, 8 absent. Thursday 17 present, 11 absent. Friday 21 present, 7 absent. Saturday 28 present, 0 absent. Now, first question. How many children were absent on Wednesday? अब देखो Wednesday को कितने बच्चे absent थे? Wednesday को हमारे 8 स्टूडेंट्स एबसेंट थे, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 8 चिल्ड्रन, राइट। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप रीड आउट करेंगे और उनके आंसर्स यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज द चार्ट और पिक्टोग्राफ to show the number of absent student on each day. Each absent student is shown by a face. एक फेस बना दिया, that means एक बच्चा absent है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 face is equals to 1 student. Now डे गिवन है और एबसेंट स्टूडेंट्स। मंडे को 3 फेसेस है तो 3 स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को 1 फेस है दैट मीन्स 1 स्टूडेंट, वेडनेसडे को 1 2 3 4 5, थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7, फ्राइडे 1 2 3 4 एंड सैटरडे 0. नाउ फैक्ट्स. डेटा हैंडलिंग मीन्स putting all the information about important things in order. Order में उनको arrange करना. Now, reading and interpreting a pictograph. The following pictograph represents number of toys owned by 5 girls. 1 teddy bear. Teddy bear बना हुआ है. Represent 10 toys. एक teddy bear का मतलब 10 टॉयज कि वो 10 टॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक रिया हैज 2 पिक्चर बनी हुई है दैट मीन्स एक पिक्चर 10 तो 2 20 टॉयज. शिवानी हैज 3 दैट मीन्स 30. शैली हैज 3 ऑल्सो 30. अनन्या हैज 4 और 5 1 2 3 4 5 यस. अनन्या हैज 5 मीन्स 50. रितु हैज 1 2 3 4 दैट मीन्स 40 टॉयज. Now reading the pictograph, answer the following questions. A. How many toys does Ritu has? रितु के पास कितने टॉयज हैं? रितु के पास देखो कितने हैं. रितु 4 टेडी बियर्स बने हुए हैं और एक टेडी बियर 10 टॉयज को प्रेजेंट कर रहा है तो दैट मीन्स 40. तो रितु के पास कितने हैं? 40 टॉयज. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप रीड आउट करेंगे और आंसर फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट, मंकी, जिराफ, बियर्ड, लायंस. यहाँ पे आपको क्या गिवन है? आपको कुछ एनिमल्स के नेम और उनकी पिक्चर्स यहाँ पे गिवन है. नाउ रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए पार्ट. हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द जू? जू में कितने एनिमल्स हैं? देखो हमारे पास मंकी कितने हैं? 1 2 3 4 5 मंकीज हैं. जिराफ हमारे पास 3 हैं. बियर हमारे पास 4 हैं. 1 2 3 4 5 6 और लायंस हमारे पास 6 हैं. तो टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8, 8 + 4 इज 8 + 4 इज 12, 12 + 6 इज 18. तो टोटल एनिमल्स कितने हैं? 18. नाउ बी पार्ट. विच काइंड ऑफ एनिमल इज द मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास? हमारे पास है लायंस, राइट. नाउ प्रैक्टिस टाइम 12. क्वेश्चन नंबर 1. The following pictograph represents number of different fruits owned by a fruit seller. One fruit represent 5 pieces. मतलब एक पिक्चर 5 pieces को रिप्रेजेंट करती है. Now मैंगोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 5 जा 40. एप्पल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 5 जा 50 एप्पल्स. बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 5 जा 60 and oranges 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 5 जा 45. Now
रीडिंग द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए पार्ट. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर इन द फ्रूट शॉप. कितने काइंड के, मतलब कितने फ्रूट्स हैं हमारे पास? मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस. 4 टाइप्स. कितने हैं हमारे पास? 4 टाइप्स. बी पार्ट. विच काइंड ऑफ फ्रूट इज द मैक्सिमम. मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट है हमारे पास? बनाना, 60. तो यहां पे हम आंसर लिख देंगे बनाना. राइट तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप रीड आउट करेंगे और उनका आंसर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन अ क्लास टीचर ऑब्जर्व नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इन पिक्टोग्राफ 1 फेस रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स? 3 स्टूडेंट्स. तो हिंदी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5. 5 3 जा 15. इंग्लिश कितने हैं? 1 2 3 4. 4 3 जा 12. मैथ्स 1 2 3 4 5 6 7. 7 3 जा 21. साइंस 1 2 3 4 5 6. 6 3 जा 18. एंड सोशल स्टडीज 1 2 3. 3 3 जा 9. नाउ रीडिंग द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए पार्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश. कितने बच्चे इंग्लिश रीड कर रहे हैं? इंग्लिश देखो, इंग्लिश के कितने हैं? 12. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप रीड करेंगे और अबव टेबल के अकॉर्डिंग उनका आंसर करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. गिवन बिलो आर द वेट्स ऑफ सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास 2. 24 kg, 26 kg, 27 kg, 25 kg, 24 kg, 24 kg, 26 kg, 28 kg, 27, 25, 26, 26, 27, 25, 24 kg. Color a block in the given table for each child. यहाँ पे हमें कलर करना है ब्लॉक को कि जिस वेट के जितने चाइल्ड है यहाँ पे. राइट जैसे यहाँ पे वेट है इन केजी एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. फर्स्ट है हमारा 24 केजी. अब देखेंगे हम 24 केजी कितने बच्चे हैं, तो काउंट करते हैं 24 केजी को. दैट इज 1 2 3 एंड 4. कितना? 4 बच्चे हैं जिनका वेट 24 केजी है. तो यहाँ पे हम 4 बॉक्सेस को क्या कर देंगे? कलर. राइट इसी तरह से 25 केजी के कितने बच्चे हैं उनको कलर कर देंगे. 26 के कितने हैं? 27, 28. इस तरह से हर एक वेट के कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, चाइल्ड है, उतने ही बॉक्सेस को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे कलर कर देंगे. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मेगा हैज मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डोनेट. नंबर ऑफ द आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स. टॉयज 12, dresses 10, shoes 4 pairs, story books 20, games 2. Now answer the following questions. A part. What are the different items that Megha is donating? कौन कौन सी items है हमारे पास? Toys, dresses, shoes, story books एंड गेम्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन भी आप रीड आउट करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. हमें OMR शीट गिवन है यहाँ पे. राइट हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है और OMR शीट में फिल करना है. नाउ लुक एट द चार्ट हैविंग डिफरेंट बर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पे हमें एक चार्ट गिवन है जिसमें डिफरेंट क्या है? बर्ड्स हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ पिकॉक. पिकॉक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 है तो हम यहाँ पे 6 पे क्या कर देंगे? टिक. और यहाँ 6 कितने पे है? सी पे. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिल करेंगे सी. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और OMR शीट में फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स.
Count the number of fruits and vegetables, fill in the chart. यहाँ पे हमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गिवन है, राइट? हमें उन्हें काउंट करना है और चार्ट को फिल करना है. लाइक ऑब्जेक्ट्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्पल्स. इस तरह से बनाना, लेडी फिंगर, राइट? तो ये सारे आपको क्या करने हैं? फिल करने हैं. और नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज हॉट्स. काउंट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर हिडन इन द गिवन शेप. एक शेप गिवन है, आपको बताना है इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनी है. तो ये एक्टिविटी भी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. Have you ever noticed your parents making lists at home? First, find out what these lists are used for. आपको पता करना है कि वो लिस्ट किस काम आती है. Next, make a list of all the things that you carry to school every day. आपको अपनी लिस्ट बनानी है जो जो चीज़ें आप डेली अपने स्कूल में लेके जाते हैं. Next, use the list to check that you do not forget anything. आप डेली जब भी स्कूल जाएंगे तो आप उस लिस्ट को चेक करेंगे और देखेंगे कहीं आप अपनी कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं, राइट? तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी. एम टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. प्रोसीजर नंबर 1, डिवाइड योर क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. नंबर 2, write down the word mathematics in your notebook. Number 3, make as many 3-letter and 4-letter meaningful words as possible using the letters in the word mathematics without repeating letters in a word. Write your words. इस मैथमेटिक्स से आपको 3-letter words और 4-letter words बनाने हैं और एक वर्ड में लेटर को रिपीट नहीं करना है, राइट? नाउ फोर्थ, count the words made by your group and complete the list. Words, number of words, 3-letter words, 4-letter words और total. आपके ग्रुप ने कितने वर्ड्स बनाए हैं वो आप इसमें फिल करेंगे और उनका कंक्लूजन निकालेंगे कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी टीचर्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.